Hello students, this is Sunita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 10 chapter number 6 life process. This is part 2 video. In part 1 video I already explained the various life processes about them and digestive system, and in this video I'm going to explain you respiration and respiratory system. Okay, so what is respiration? It is a process to generate the energy for our metabolic activity. Whatever we are needing for our metabolic activity, the energy is generated by the process of respiration, by breaking down of glucose. Okay, the respiration is of two types, aerobic and anaerobic respiration. So let us discuss about respiration in details. So respiration is the process by which food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release the energy. Okay, फूड जो है वो हमारे सेल्स में फूड का बर्न्ड होना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का बर्न्ड होना और उसका रिलीज होना एनर्जी, यही प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है. इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. ओके, एंड द एनर्जी व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी. ATP molecule means adenosine triphosphate. It is a form of energy and it's formed with the help of ADP and inorganic phosphate. Okay, ADP, adenosine diphosphate, plus for inorganic phosphate join together and it gives ATP molecule. Okay, and in our body, in our cells, energy is stored in the form of ATP molecule, and when the cell required energy or when the cell need any energy, the ATP again broken down in the presence of water into the ADP and energy is released. Okay, understood this fact? Means ATP जो होता है, ATP के रूप में हमारी एनर्जी जो है हमारे सेल्स में स्टोर रहती है, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ATP जो होता है वो अगेन ब्रेकन डाउन हो जाता है किस फॉर्म में, ADP में, और एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होती है. ओके, so I already explained that there are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration means the respiration which take place in the presence of oxygen. Okay, it produce more energy. Okay, in aerobic respiration, because I already explained कि जब food particles burned होते हैं सेल से एनर्जी, तो उस टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलती है, एनर्जी जो है वो मोर अमाउंट में मिलती है. सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, so glucose in the presence of oxygen in the cytoplasm converted into the pyruvate, and pyruvate in the presence of oxygen, and this process is held on mitochondria. ठीक है, in mitochondria. So the pyruvate in the presence of mitochondria gives CO2 plus H2O plus lots of energy. Okay, then we will come to an aerobic respiration. Anaerobic respiration take place in the absence of the oxygen and it produce the less energy. Okay, sometimes no energy, but sometimes it produce less energy. Okay, the end product of the anaerobic respiration are lactic acid and ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, it take place in the muscle cells and the yeast. Okay, काफी बार क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लिया है, ठीक है, एक्सरसाइज कर लिया, हम लोग को जरूरत है, हमें नीड है, ऑक्सीजन ज्यादा लेवल चाहिए होता है उस टाइम पे एक्सरसाइज करते टाइम पे. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन लेवल अगर कम होना शुरू हो जाता है उसमें, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू होता है जिससे बॉडी में क्रम्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मसल सेल्स में होती है तो ग्लूकोज जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, इट गिव्स lactic acid plus energy in the absence of oxygen. Okay, and if this reaction is held in yeast, then what happened, then glucose in the presence of oxygen converted into the pyruvate, and this pyruvate in the absence of oxygen gives ethanol, CO2 and energy. Okay, understood? In muscle cell it gives lactic acid and energy, and in yeast cell it gives ethanol, CO2 and energy. Okay, so the breakdown of the glucose of various pathways. Okay, this is very important questions. आपको काफी बार पूछने जाएगा, घुमा फिरा के हर साल इसमें से 1 या 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस आ ही जाता है. ठीक है, आपको नॉर्मली या तो बोल दिया जाएगा
कि ग्लूकोज का ब्रेकन डाउन बताओ, या फिर बोल दिया जाएगा ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन बताओ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन बताओ, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाएगा। या फिर आपको पायरुवेट तक बना के दिया जाएगा टेबल, और फिर इन द आपको जो भी है ये 3 फ्लो चार्ट्स जो है ये सब आपको खुद को मतलब आगे बताने होंगे, प्रेजेंस में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है, मतलब घुमा फिरा के इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर भी प्री बोर्ड्स में बहुत बार आया था, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको कैसे सभी में आपने देखा होगा एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सभी में ग्लूकोज से पायरुवेट और एनर्जी कन्वर्ट होना ये तो कॉमन ही है, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म होता है, CO2, H2O and energy, okay, and in the absence of oxygen, if it is held in a muscle cell, then it will form lactic acid and energy, and in the absence of oxygen, if it is held on yeast, then it will form ethanol, CO2 and energy, okay. It's very important, please carefully study about it and make practice it, okay. So respiration in the humans. So you know that the respiration will be held through various mean organs of the respirations, which join together and form the respiratory system, okay. And what were they? They are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs, and द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायफ्राम, ओके, हो गया। तो ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। सो हाउ इट विल हेल्प, ओके, कैसे होता है रेस्पिरेशन, ये सब देखते हैं हम लोग इसी में। तो क्या होता है स्टार्टिंग में, the air enters through the nostrils, nostrils के थ्रू एयर आती है, then the hair and the mucus जो होता है यहाँ पे वो क्या कर लेता है, it will trap the dust particles and then it passes the air through the pharynx to the larynx and then trachea, then bronchi, and it will enter to the lungs, okay. The trachea has a ring of cartilage, okay, ring of cartilage होता है जो क्या करता है, एयर जो है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, कोलैप्स नहीं हो, एयर एक फ्लो में जाए, ऐसे करने से उसको बचाता है, ठीक है। तो ट्रैकिया के जो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। एंड द ब्रोंकी जो होते हैं वो फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट डिवाइड हो जाती हैं और उनको बोलेंगे हम लोग ब्रोंकियल्स, ओके। एंड ब्रोंकियल्स जो होते हैं उसके एंड में जो जॉइंट होके बचता है वो क्या होता है, एक टाइनी एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक जो बोलते हैं जिसको, और उसको बोलते हैं हम लोग एल्वेलाई, ओके। एयर सैक है ये, ठीक है, और इसमें एयर मतलब पंप इन होती है, आउट होती है, तो इसी से होती है, गैस का एक्सचेंज भी यहीं से होता है। सो एल्वेलाई जो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होती है ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इसी से टेक प्लेस होता है, ठीक है, यहीं से होता है। एंड द एल्वेलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो सरफेस एरिया है उसको भी इंक्रीज करती है, ठीक है। देन मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, ठीक है। सो व्हेन वी ब्रीथ इन, ठीक है, जब इनहेलेशन प्रोसेस होता है, ब्रीथ इन मींस होता है इनहेल करना, इनहेलेशन प्रोसेस, तो जब भी इनहेलेशन प्रोसेस होती है द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द मूव्स डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, ओके। डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और डाउनवर्ड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है जिससे एयर जो है वो लंग्स में इजीली फिल हो सके, ठीक है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल का तो मैंने बता दिया, डायफ्राम उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी और एयर एंटर हो जाएगा, ओके। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, व्हेन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द muscles of the diaphragm relax and moves upward and the chest cavity contract and the air goes out of the lungs, okay। इसमें क्या होता है, मसल्स जो है वो डायफ्राम जो है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, और इनहेलेशन में जो डाउनवर्ड जा रहा था वो अपवर्ड चला जाएगा, चेस्ट कैविटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड एयर जो है गोज आउट फ्रॉम द लंग्स, ओके। दिस इज द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मतलब ब्रीदिंग होती है, ठीक है। वन inhale and one exhale is equal to one breathe, okay, one inhale plus one exhale is equal to one breathe, okay, एक breathe जो होते हैं वो उसको बोलेंगे, ठीक है। That's all in this video. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel Vinita Shekhawat. Thank you.